Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to study class 8, chapter 6, The First War of Independence 1857। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 6 जो कि है हिस्ट्री का द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यह अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जैसे देखेंगे हाउ रिवोल्ट ओरिजिनेट एंड स्प्रीड। इन द प्रीवियस लेसन यू हैव स्टडीज why peasant and tribal rose in revolt on more occasion than one. You have also studied that how the British in their greed of occupying territory but the ruler and people in great trouble when people are not to ease. It is but natural for them to protest. So far as the East India Company's rule was concerned, there were numerous cases due to which people were feeling discontent. The opportunity to rise against came in 1857। तो कहा जा रहा है जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेसन में हम लोग ने देखा कि किस प्रकार जो गांव के जो लोग हैं वो आदिवासी एक से अधिक बार उन्होंने विद्रोह किया। आपने यह भी सीखा है कि ब्रिटिश अपनी संपत्ति को कब्जे में करने की लालसा में राजाओं और लोगों को बड़ी मुश्किल में डाल दे रहे थे। जब लोग सुखमय नहीं होते तो उन्हें प्रदर्शन करना तो स्वाभाविक बनता है। जब बात पूर्व भारत कंपनी के शासन की थी तो उसके कई कारण थे जिनसे लोग असंतुष्ट थे, असंतोष अनुभव कर रहे थे। 1857 में इसके खिलाफ उन्हें बोलने का, उन्हें उठने का मौका मिला। विथ द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 द कंपनीज imperialistic ambition for occupying more and more territory rose its ugly head. It used a variety of means to occupy territory including war, subsidiary alliance and doctrine of lapse. It had also realized that the Indian people lacked nationalistic feeling and they felt more for their reason and religion than the country as a whole. This was the reason that the revolt that occurred until 1856 were all regional by nature. Moreover, when one section of people revolted, others seldom participated. The disunity encouraged the British to occupy more and more territory. अब 1757 में फलासी का जो युद्ध होता है, इसके बाद कंपनी की जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा ने अपना बुरा प्रभाव दिखाया, अपना जो उन्होंने ग्रीडली जो ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। इसने भूमि कब्जे में विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जैसे युद्ध, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। उसने यह भी महसूस किया कि भारतीय लोग राष्ट्रभक्ति भावना से रहे हैं और वे अपने क्षेत्र और धर्म के लिए देश के मुकाबले अधिक भावना रखते हैं। यही कारण है कि 1856 तक हुए विद्रोह सभी क्षेत्रीय प्रकृति के थे और जब किसी समुदाय का विद्रोह होता था तो दूसरे अक्सर भागीदार नहीं होते थे। यह उन्हें और ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही थी अधिक से अधिक भूमि कब्जा करने को लेकर।
The British also realized that the Indian could prove to be good soldier, so they recruit them in large number. By 1856 there were more Indian soldiers that than the British soldier in the company's three armies known as Bombay Army, Madras Army and Bengal Army. तो ब्रिटिश ने यह भी महसूस किया कि भारतीय सैनिक अच्छे सैनिक साबित हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने बड़ी संख्या में इनकी भर्ती भी की। 1856 तक कंपनी की 3 सेनाएं, जिनमें बॉम्बे सेना, मद्रास सेना और बंगाल सेना इस नाम से जानी जाती थी। फिर अब है Traditionally, a soldier in India was called Sipahi, which changed to Sepoy under the British. Although the Indians were winning wars after wars for the British, yet they were greatly discriminated against in pay, allowances, promotion, and other facilities. Until 1856, revolt occurred by ruler, Jamindar, peasant, tribal, and sepoy. Some of these were quite massive, yet they did not spread beyond the region, as the religious sentiments too were threatened by the British, especially due to the work of Christian missionaries and English education. Religious groups too rose in revolt. They felt dissatisfied with certain laws that were seen as interference in religion, such as the law on sati custom, child marriage, and widow remarriage, etc. The important revolt by religious group occurred by the sannyasis in Bengal, Wahhabis in Bareilly, Bihar and Bengal, and Fakirs in eastern India. They also supported the rebellions whenever any uprising took place. परंपरागत रूप से भारत में एक सैनिक को सिपाही कहा जाता था, जिसे ब्रिटिश के द्वारा सिपाही कहा जाने लगा। हालांकि भारतीय लोग ब्रिटिश के लिए एक के बाद एक युद्ध जीत रहे थे, फिर भी उन्हें वेतन, भत्ते और प्रमोशन और अन्य सुविधाएं में बड़ी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। 1856 तक राजाओं, जमींदारों, पीजेंट जो किसान थे वो, ट्राइबल्स और सिपाही, इनके द्वारा विद्रोह देखने को मिला। इनके द्वारा विद्रोह किया गया। इनमें से कुछ काफी बड़े थे, लेकिन वे क्षेत्रीय ही रहे। साथ ही जब एक समुदाय विद्रोह किया तो दूसरे आमतौर पर शामिल नहीं हुए। इस अखंडता ने ब्रिटिश को और अधिक भूमि कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित कर दिया। और इसके पश्चात कुछ ऐसे वर्ग थे जो नए लॉ, जो कि सती कस्टम, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज और विडो रीमैरिज, इस पर जब ब्रिटिश ने बदलाव किया तो इससे खुश नहीं थे। इसलिए बंगाल में आपको ये सन्यासी के ग्रुप के द्वारा, वहाबीज बरेली में और फकीर ईस्टर्न इंडिया में इस विद्रोह के साथ शामिल हो जाते हैं और इन रेबेलियंस के साथ हो जाते हैं। Prior to 1857, the sepoy
Prior to 1857, the Sepoy too rose in rebellion on several occasions, such as in Bengal in 1764, at Vellore in 1806, at Barakpur in Bengal in 1824, and again at this place in 1844. A number of revolts occurred just prior to 1857 uprising, such as in Barakpur, now in West Bengal, Ambala, now in Haryana, Fatehpur, now in Uttar Pradesh, etc. However, these revolts remained local in nature, but they were brewing sentiments which would burst out in the massive uprising in 1857, which better deserves to be called the First War of Independence. तो अब कहा जा रहा है 1856 तक कई बार सिपाही के द्वारा भी विद्रोह किया गया, जैसे कि 1764 में बंगाल में, 1806 में वेल्लोर में, 1824 में बैरकपुर बंगाल में, और फिर इस स्थान पर 1844 में, फिर से बैरकपुर में ही 1844 में हुआ। 1857 के विद्रोह से पहले ऐसे कई विद्रोह हुए, जैसे कि बैरकपुर में अब के समय में जो पश्चिम बंगाल में है, अंबाला जो कि अब के समय में हमें हरियाणा में देखने को मिलता है, और फतेहपुर जो कि आज के समय में उत्तर प्रदेश में हमें यह देखने को मिलते हैं आदि। हालांकि ये विद्रोह स्थानीय प्रकृति के रहे, लेकिन इनमें विद्रोह फैलने की भावना थी जो 1857 में हुए विशाल विद्रोह में वो फूट गई, जिसे बेहतर तरीके से स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा जा सकता है। फिर अब देखते हैं अपराइजिंग ऑफ 1857 to 58. Any massive occurrence is the result of several causes. The following causes contributed to the breakout of the rebellion. Number 1, political cause. The British were very shrewdly occupying territory after territory by war or other pretext, such as the subsidiary alliance system and doctrine of lapse. You have read about these in previous lesson when the British annexed Awadh in 1856 in the name of mismanagement. People felt dissatisfied. Most of the sepoy in the Bengal army came from Awadh, who felt anguished. Similarly, Nanaji, the adopted son of Peshwa Bajirao too, was not allowed pension, which caused a lot of dissatisfaction among the sepoy. There were numerous such a case. तो पॉलिटिकल काउज की बात करें, पहले तो 1857 to 58 जो विद्रोह है, किसी भी विशाल घटना का परिणाम के कई कारण हमें देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित कारण में से एक है राजनीतिक कारण। ब्रिटिश बहुत धीरे धीरे युद्ध या अन्य बहाने जैसे कि सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के माध्यम से एक के बाद एक क्षेत्र में कब्जे कर रहे थे। आपने पिछले पाठों में, पिछले लेसन में ये पढ़ा, जब ब्रिटिश ने अवध को 1856 में प्रबंधन के नाम पर जब्त किया, प्रबंधन के नाम पर उस क्षेत्र में, अवध के क्षेत्र में कब्जा किया, तो लोग असंतोष महसूस करने लगे। बंगाल सेना के अधिकांश सिपाही अवध से आए थे जो बहुत दुखी महसूस कर रहे थे। उसी तरह पेशवा बाजीराव द्वितीय के
जो एडॉप्टेड सन थे नानाजी, उन्हें पेंशन देने से मना कर दिया गया, जिससे सिपाहियों में काफ़ी असंतोष था। इस तरह के कई कई हमें मामले देखने को मिलते हैं। फिर दूसरा है सोशल एंड रिलीजियस काउज। द हिंदू सोसाइटी was arranged in the caste hierarchy, in which those who considered themselves high caste did not like to mingle with both of the so-called low caste, but in the railway they had to sit and travel together. Some interference in the Hindu personal laws were also seen as interference in religious, such as the abolition of the sati custom. Then English education was also looked at with suspicion, because the Christian missionaries were at work in educational institutions. Thus religion was perceived to be at threat. The Indian were also supposed to salute all British people. सामाजिक और धार्मिक कारण। हिंदू समाज को जाति श्रेणी में व्यवस्थित किया गया था, जिसमें वे लोग जो खुद को उच्च मानते थे, वे उन लोगों के साथ मिलकर बैठना और सफर करना पसंद नहीं करते थे, जो जिसे कि हम लोग लो कैटेगरी के लोग कहते हैं। लेकिन रेलवे में उन्हें एक साथ बैठना और सफर करना पड़ता था। हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में कई बार उन्हें यह देखने को मिला कि उनके जो व्यक्तिगत कानून होते हैं उनमें इंटरफेरेंस किया जा रहा है, यानी उनमें आपको देखने को मिलता है कि उनमें बदलाव किया जा रहा है। जैसे सती प्रथा की समाप्ति। फिर अंग्रेजी शिक्षा को भी संदेह के तौर पर देखा जाने लगा, क्योंकि ईसाई मिशनरीज का शिक्षा संस्थानों में काम करना इस प्रकार धर्म को खतरे में माना गया। भारतीयों को सभी ब्रिटिश लोगों को सलाम भी करना पड़ता था। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक कॉज और मिलिट्री कॉज। तो इकोनॉमिक कॉज में है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश वॉज टू मेक मनी इन what they could. Their economic policies ruined the farmers, craftsmen, tribal, ruler, trader and other. The Indians were employed in the company but were not given promotion above supervisory level, such as above a munsif in judiciary or an inspector in police. This naturally dissatisfied common people. एंड अब देखते हैं मिलिट्री काउजेस। देयर वेर डिस्क्रिमिनेशन इन द कंपनीज आर्मी टू। दे वेर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन सैलरी, प्रमोशन एंड वर्किंग आवर. दे वेर नॉट अलाउड टू वेयर their religious mark. The Indian sepoy were treated very badly. They were often punished in full public view for even minor fault, while the British soldiers were allowed to go scot-free for the same offense. The sepoy were on several occasions sent out of the country. When they were being taken to Burma by the sea route, they protested because the Hindu sepoy in fact feared that they would lose their caste if they traveled overseas, but they had no objection to going by land route. Also, the British has
discontinued the foreign service allowed, called BATA, which added to their discontentment. तो अब आर्थिक कारण में देखते हैं, ब्रिटिश का मुख्य उद्देश्य किसी भी तरीके से पैसे कमाना था। उनकी आर्थिक नीतियों किसान, शिल्पकारों, आदिवासियों, राजाओं, व्यापारियों और अन्य लोगों को बर्बाद करके रख दिया। उनकी जो आर्थिक नीति थी, उनके द्वारा अन्य लोग जो थे वो सभी बर्बाद हो गए। भारतीयों को कंपनी में नौकरी दी गई, लेकिन उन्हें प्रशासनिक स्तर पर प्रमोशन नहीं मिलता था। न्यायिक विभाग में मुंसिफ के ऊपर या पुलिस में निरीक्षक के ऊपर उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाता था। इससे सामान्य लोग भी असंतुष्ट थे। सैन्य कारण, कंपनी की सेना में कई प्रकार के भेदभाव होते थे। उनको वेतन, पदोन्नति और काम की जो समय सीमा है उनमें भेदभाव किया जाता था। उन्हें अपने धार्मिक चिन्ह पहनने की अनुमति नहीं थी। भारतीय सिपाही के साथ बहुत बुरी तरह व्यवहार किया जाता था। उनकी छोटी छोटी गलतियों पर भी अक्सर कई बड़े सजे सुनाए जाते थे, जबकि उसी अपराध के लिए ब्रिटिश सैनिकों को बगैर सजा के जाने की अनुमति थी। सिपाहियों को कई बार देश के बाहर भेज दिया जाता था। जब उन्हें समुद्र मार्ग से बर्मा ले जाया गया तो उन्होंने विरोध किया, क्योंकि हिंदू सिपाही वास्तव में समुद्र के रास्ते से जो दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगा कि वह अपनी जो जाति है उसे खो सकते हैं, अपने अस्तित्व को खो सकते हैं, लेकिन उन्हें लैंड मार्ग से जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा ब्रिटिश ने विदेशी सेवा, जैसे जिसे बट्टा कहा था, उसे को बंद किया था, जिससे उनका असंतोष और बढ़ गया। अब देखते हैं इमीडिएट काउज ऑफ द अपराइजिंग। In 1856, the British introduced a new type of rifle, Enfield. Its cartridges were covered with grease of paper to load in the rifle. The paper had to be bitten by mouth. It came to be believed that this paper was greased with the fat of cow and pig. It often the religious sentiment of both Hindu and Muslim. When they were forced to use it, they resent as a result. Revolt occurred at several places. The first to occur was at Barakpur by Mangal Pandey. However, other sepoy did not come to his help. He caught and hanged on 8 April 1507. The news traveled to all units, caused dissatisfaction among all sepoy. The British failed to see it. They never expected that it could be a cause of a massive uprising. तो विद्रोह का जो तुरंत कारण था, इसमें यह भी है कि 1856 में ब्रिटिश ने एक नई प्रकार की राइफल इनफील्ड प्रस्तुत की। इसके कार्टेज को एक चिकने कागजों से ढका गया था। इसे राइफल में भरने के लिए इस कागज को मुंह से काटना पड़ता था। इस चिकने कागज के बारे में यह माना जाता था कि इसमें जो ग्रीसिंग की गई है, जो ऑयल लगाया गया है, वो गाय और सुअर के तेल से लक्षित होता है। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों के धार्मिक भावनाओं को आहत किया। जब उन्हें इसका उपयोग करना था तो उन्होंने इसका
तो उन्होंने इसका विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर विरोध हुआ। पहला जो विद्रोह है बराकपुर में मंगल पांडे द्वारा हुआ। हालांकि दूसरे सिपाही उसकी मदद में नहीं आए, उसे पकड़ लिया गया। 8 अप्रैल 1857 को उसे फांसी दी गई। इस खबर के द्वारा, यह खबर जब सभी लोगों के पास पहुंचती है, सभी इकाइयों के पास जब यह खबर पहुंचती है, तो सभी जो सिपाही हैं उनके बीच में असंतोष का भाव होता है। ब्रिटिश ने इसे नहीं देखा। उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि यह एक विशाल विद्रोह का कारण बन सकता है।